को अलग किया है, लेह लद्दाख को किया, तो हमें करगिल को अलग कर दीजिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि करगिल अगर लेह लद्दाख के साथ रहेगा तो शायद उसका भी, जैसे कि पहले लेह लद्दाख के लोगों की मांग थी ऐसी ही करगिल की थी, लेकिन अब हमने नहीं देखा है। अब वहां पर हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं, वहां के रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आएंगे और वो खुद अपना विकास करेंगे, करगिल का विकास करेंगे। सही। मैं राजीव कुमार सर की तरफ जाना चाहूंगी। राजीव कुमार साहब, आपकी सारी डिस्कशन हमारी सुन रहे हैं, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? ये कह रहे हैं कि लोगों की डिमांड थी, लोग, अगर आप 3 लाख की पॉपुलेशन को करते हैं तो आप 1,60,00,000 पॉपुलेशन को कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं, I would like to say, Mr. नीरज, जो आपका जो आर्ग्यूमेंट है, that's based on false premises. Article 370 was not temporary. The accession of Jammu and Kashmir state to India was temporary. And Indian government has not abrogated Article 370 because they cannot. They have rendered it inoperative. अगर आप उसको लीगली देखें, आर्टिकल 370 को उन्होंने इनऑपरेटिव किया बिकॉज दे डोंट हैव पावर्स. इंडियन पार्लियामेंट डज नॉट हैव पावर्स टू एब्रोगेट आर्टिकल 370. If they abrogate Article 370, Jammu and Kashmir ceases to be part of India. So this is the lead. And second, आप वो उसको कह रहे हैं कि लद्दाख का कल्चर अलग है कश्मीर से, right? But Ladakh का culture, then it is more close. It is closer to Tibetan culture. So Indian government has opened a door for China to intervene. Indian government cannot blame anybody else other than itself, because when the border was the border between India and China, it is undemarcated. So and when India unilaterally changed the status of that place, so that's why that gave China an opening to intervene. And then besides that, India has been, because another thing which I think Indian media forgets to point out, it has been India aligning with Trump administration in the US, going around all over the world in every different forum, trying to accuse China of spreading virus. And that's a big factor. I mean, it's not just 800. You said that the border between India and China is 800 kilometers. The total border between India and China is 2,500 kilometers. And the dispute is not only in the Ladakh sector. The disputed border is also on the east. So it's just because the Indian government, the major blame is on the Indian government when they unilaterally change the status of the state. बिल्कुल सर, मेरा भी यही इसमें पॉइंट था। मैं जो है ब्रिगेडियर साहब की तरफ आना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, महमूद साहब आप सुन पा रहे हैं? उनका माइक ऑफ है, आई थिंक। जी चले, मैं सर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि दूसरा क्वेश्चन भी आपसे ही मैं करना चाहूंगी कि जो हमारे जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें पॉलिटिकल जो हमारी पार्टीज आ गई, या इसमें जो है अभी पाकिस्तान है, या हम जो इसमें चाइना इन्वॉल्व हुआ है, आप क्या समझते हैं कि इन फ्यूचर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे जो स्टेट का जो ये पूरा डिस्प्यूट है इसके ऊपर, और जो हमारी फैमिली जो जी हाँ, तो देखिए, द फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है कश्मीर, द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को सेटल कीजिए। All these stakeholders, they should settle the issue of Jammu and Kashmir. It's a disputed status. Whether somebody agrees or not,
the status of Jammu and Kashmir is disputed. So it needs to be settled. Only then there can be any kind of peace, prosperity, everything will come. Just if I may take just a few seconds to say. So in 2006, the agreement between General Musharraf and Indian Prime Minister Manmohan Singh, they were about to reach an agreement. So Vajpayee is No, not Vajpayee. It was Manmohan Singh, under Manmohan Singh. And that agreement was based on the premise that there should not be no border between two Kashmirs. So that was based on that status of the land cannot be changed now. So it would be just to render border meaningless. So same ways, that is something that can be the basis of. But I doubt if under the current Indian government anything can happen. So means के जो हमारी स्टेट उसको डिवाइड किया जा रहा है, ये मजीद डिवाइड होने का इसको आप समझते हैं कि ये खतरा है। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, जब भी कुछ हुआ है वहां पे कश्मीर के अंदर, उससे कहा जाता है उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन अगर आप कश्मीरियों के पर्सपेक्टिव से पूछें तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा। तो आप क्या समझते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर? जो इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, या जो कश्मीरी कह रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं कश्मीरियों के लिए, और वहां से आप कह रहे हैं कि ये हमारा अटूट अंग है, हमारे शाहरग है? तो दोनों में से कौन सही कह रहा है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसके लिए करेगा, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पे करेगा। ये मीडिया के थ्रू नहीं होगा, या मीडिया के थ्रू जो भी है यानी एक मॉरल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट जो भी होता है डिप्लोमेटिकली, वो चलता रहेगा। अगर आपका इससे मकसद ये है कि पाकिस्तान क्या करेगा और किस तरीके से करेगा, तो शायद ये मीडिया में बिकॉज़ इंडियन मीडिया का क्लेम है, इंडियन गवर्नमेंट का क्लेम है, इनकी जो इनकी ब्यूरोक्रेसी है उनका क्लेम है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, जो मिलिटेंसी है कश्मीर के अंदर उसमें उनको सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। दरअसल इस वक्त जो इशू है वो बड़ा है। वो इंडिया का जो हिंदुत्व, आरएसएस का मुसलमानों को एनालाइजेशन का है, जिसके अंदर जो इंडिया के अंदर 200 मिलियन कितने जो 20 करोड़ मुसलमान है, उनकी लाइफ जो है एट स्टेक है। तो पाकिस्तान वुड नॉट लाइक कि इसको इंडिया और पाकिस्तान का इशू बनाया जाए, क्योंकि उसी के अंदर जो इंडिया के अंदर मुसलमान रह रहे हैं, जिसका कश्मीर के अंदर मुसलमान एक हिस्सा है, उसको उस ब्रैकेट में नहीं लाना चाहते। उसको लाना चाहते हैं कि इंडिया जो कर रहा है ये बहुत ख़तरनाक गेम है और इन दुनिया को इसके ऊपर जो है तवज्जो देनी चाहिए। और जो कश्मीर में कर रहा है ये बहुत बेशर्मी से बहुत ज़्यादा यानी दुनिया के बिल्कुल सामने आप इतने आबादी 80 लाख यानी तकरीबन 1 करोड़ के करीब आबादी है, उधर आप कर्फ्यू हो, वहाँ पर आप मिलिट्री फोर्सेस भेज देते हैं, उनको घरों में बंद कर देते हैं, उनके हॉस्पिटल बंद कर देते हैं, उनके स्कूल बंद कर देते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है दुनिया के सामने ला रहा है। जहाँ तक है कि पाकिस्तान इसको पर्टिकुलरली इस टाइम पे के ऊपर जो इंडिया का प्लान है, जिस तरीके से वो इंडिया के मुसलमानों के साथ या पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ उनके बड़े ग्रैंडोर प्लान्स हैं, और वो जर्मन्स को, हिटलर को कॉपी करना चाहते हैं, और ये 1920 से चल रहा है और अभी ये पावर में आए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो बड़ा इशू है, दुनिया का तवज्जो इसके ऊपर लाना चाहते हैं, और कश्मीर इस पूरे इशू का एक हिस्सा है। तो इसलिए इस वक्त जो है पाकिस्तान समझ रहा है कि इसको सिर्फ पाकिस्तान इंडिया
यानी दुनिया फिर ये समझे कि ये पाकिस्तान इंडिया का चलता रहता है, इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन सर बहुत अगर आप बड़ा। समझते हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का इशू है, लेकिन जब बॉर्डर पे बात गोली चलती है तो दोनों तरफ से जो है ना हमारा हमारा खून बह रहा है ना। अगर इस मसले को रिजॉल्व नहीं, अगर आप समझते हैं कि आर्मी ऑप्शन नहीं है, वॉर ऑप्शन नहीं है, तो आप लोग टेबल पे बैठते भी तो नहीं है ना। असल में पाकिस्तान जो है वो टेबल पे बैठने को तैयार है, लेकिन जो ये गवर्नमेंट आई है और जिस तरीके से इनकी पॉलिसी है उसको समझती है कि शायद इंडिया सीरियस बातचीत के लिए तैयार नहीं है। जो वॉर ऑप्शन है, मैंने कहा कि वो रहता है, लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया जाता मीडिया में, और वो किस वक्त होता है उसका टाइम भी नहीं बताया जा सकता, और किस तरीके से होगा वो भी नहीं बताया जा सकता। तो इसलिए ये जो मौजूदा चाहे कश्मीर में कुछ लोग ऐसे कह रहे हो कि पाकिस्तान क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में उनको सब्र करना चाहिए। हमें मालूम है उनके बहुत बहुत सख्त वक्त गुजर रहा है, और पाकिस्तान उसको इंशाल्लाह, और अभी पाकिस्तान को या हमें, जैसे मैं हूँ, हमें लग रहा है कि कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद होगा। अगर पहले कोई थोड़ी सी नाउमीदी थी, अभी उम्मीद है। ये जिस तरह ये गवर्नमेंट जिस तरीके से आई है, जिस तरीके से इनने कश्मीर में किया है, जिस तरीके से हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया के सामने और अप्रोप्रिएट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक अच्छी पॉलिसी है। नीरज जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जैसे कि अभी आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी, ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि हम जो है आजादी को बहुत करीब देख रहे हैं। जो एक सेकंड, आपकी आवाज थोड़ी म्यूट, क्वेश्चन पूछने तक म्यूट करती हूँ। उनका कहना है कि हम जो कश्मीर की आजादी है उसको बड़ा करीब देख रहे हैं, क्योंकि जो अभी की जो आपकी गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज ऐसी हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने 3 लाख के ऊपर 2 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोगों को फौकियत दी, और आप लोगों ने जो है ना लद्दाख के लोगों की बात सुनी कि हमें यूनियन टेरिटरी बनाओ और हमें राइट्स दो। अंडर कश्मीर जो पॉलिटिकल वो एक सिनारियो है उसमें उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये इसका हल है, क्या ये इसका सोल्यूशन है, और क्या आप समझते हैं कि कश्मीर जो है वो आजाद होगा? क्या हमारी स्टेट जो है दोबारा से जो है वो बन जाएगी, या ये डिस्प्यूट और 70 साल ऐसे ही चलाना है हमारी जितनी भी इस साउथ एशिया की पॉलिटिकल लीडरशिप है? अगर आजाद होगा तो कश्मीर होगा अपनी पॉवर्टी से, बैकवर्डनेस से, वो जो पिछले 60-70 साल से वो आर्टिकल 370 के अंदर फंस कर जो रह गए थे। और डेवलपमेंट जाकर देखिए आप, वहां पर डेवलपमेंट क्या हुआ है कश्मीर के अंदर। एक जो ब्रिज श्रीनगर के अंदर है उसको 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं बनने के लिए, लेकिन अब देखिए कितनी जल्दी बन के तैयार हो गया। और जहां तक आजादी की बात है तो भारत की पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट ने जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसको लेकर अपना एक्ट पास कर दिया है। उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी लेकर रहेंगे। तो अब ये दोनों जो कश्मीर एक साथ होंगे उसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल होगा, तो वो विदाउट बॉर्डर्स होगा। वो किसके पास होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, ठीक है। और अगर दूसरी बात करें, जहां ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि वहां पर इस तरह का रूल है कि डिक्टेटरशिप है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश भारत है, जहां पर इलेक्शंस होते हैं, जहां कर हर आदमी वहां पर वोट डालने के लिए आता है वहां पर। और कश्मीर भी उसी का पार्ट है, कश्मीर में भी डेमोक्रेसी है, कश्मीर में भी लोग वोट डालने के लिए आते हैं, अपना नेता चुनते हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, वो सब सीएम वहां पर इलेक्शन से लड़कर ही बने हैं। और दूसरी बात, अगर आप कहें कि भारत जो है पीस के लिए, शांति के लिए बात नहीं करता है, पाकिस्तान बैठना चाहता है, तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने थे, जब चुनकर आए थे वर्ष 2014 में, तो सबसे पहले किसको इनवाइट किया था उन्होंने अपनी ताजपोशी के लिए? जितने सारे कंट्रीज थे उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी थे, नवाज शरीफ, बुलाया था ना उनको। उनकी जो घर पे जो शादी हो रही थी अफगानिस्तान से जब लौट रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो किसके घर पे पहुंचे थे? बिना बताए पहुंचे थे। शुभकामनाएं देने किसके लिए पहुंचे थे? वो किस लिए पहुंचे थे? शॉल उनकी मदर को क्यों भेंट किया था उन्होंने? वो इसीलिए किया था कि हम शांति चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या दिया? पठानकोट अटैक दिया। पाकिस्तान ने पठानकोट में एयरबेस पर अटैक किया,
टेररिस्ट कहां से आए थे? पाकिस्तान से ही आए थे। फिर दोबारा जब गवर्नमेंट बनी, हो सकता था बातचीत हो सकती थी, फिर क्या हुआ, उरी में अटैक करवाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, पुलवामा में अटैक करा दिया। तो आप चाहते हैं कि अगर लगातार पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म रहेगा तो क्या भारत बातचीत करेगा? नहीं करेगा। भारत ने साफ कर दिया है, जब तक कश्मीर में आप प्रॉक्सी वॉर नहीं बंद करेंगे, टेररिस्ट की इन्फिल्ट्रेशन बंद नहीं करेंगे, वहां पर गन्स भेजना बंद नहीं करेंगे। अब तो ड्रोन से भी गन्स आने लगी हैं, स्मगलिंग होकर बॉर्डर से आने लगी है, क्योंकि भारत की सेना ने इतना स्ट्रिक्ट जो है वहां पे ग्रिड तैयार किया है एंटी इन्फिल्ट्रेशन की, अब वो ड्रोन से वेपन भेजते हैं। तो इसलिए जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत के टेबल पर नहीं आएगा। अभिनंदन आपके भी मारे जाते हैं दूसरी साइड पे वो छोटे छोटे अभिनंदन आपके भी पाकिस्तान गिराता है वहां पे बॉर्डर पे, एलओसी पे। तो वो जो छोटे छोटे ड्रोन है वो तो आपके भी गिराए जाते हैं, और अक्सर वो मैं देखती हूँ ISPR पे भी आ रहा होता है। मेरा जो कंसर्न है, अभी आपने डेमोक्रेसी की बात की, क्या आपने कहा महबूबा मुफ्ती साहिबा डेमोक्रेटिक वे से जो है वहां पे CM बनी, और वो क्या, और वही महबूबा मुफ्ती जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया बीजेपी को इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उससे पहले कोई नाम नहीं था बीजेपी का ऑन ग्राउंड, ठीक है, इसको आपको मानना होगा। और उसी महबूबा मुफ्ती को उठा के आप लोगों ने जी जेल में भर दिया, उसी फारूक अब्दुल्ला को, जो कि सेइंग दैट आई एम अ प्राउड हिंदुस्तानी, उसी डेमोक्रेसी ने उठा के उसको जेल के पीछे, उसके बेटे को जेल के पीछे डाल दिया। उसी फारूक अब्दुल्ला साहब का जो वालिद था, उसने आपके साथ पावर ऑफ असेशन जो है साइन किया था, एग्रीमेंट किया था, उसको आपने उठा के जो है 17 ईयर्स आपने उठा के जेल में भेज दिया। अरे कैसी डेमोक्रेसी, हमें तो कहीं नहीं दिखती कश्मीर में डेमोक्रेसी। और आपने डेवलपमेंट की बात की, आप आइए श्रीनगर में, कश्मीर में, तब पता चलेगा आपको कि वहां पर डेमोक्रेसी कैसी है। सब खुलेआम घूमते हैं वहां पर, मार्केट में सब खुला रहता है, सब आते जाते रहते हैं वहां पे, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है वहां पे आने के लिए। आप आइए, मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ देखूंगा, क्योंकि मैं तो जाता रहता हूँ। मैं तो अभी जैसे बताया आपको कि अभी अगस्त के महीने में भी मैं गया था, श्रीनगर भी गया, कश्मीर गया, कुपवाड़ा किया, जहाँ राजीव जी का घर है, अनंतनाग है, उसमें भी गया, पुलवामा, दरअसल अनंतनाग नहीं जा पाया था इस बार पुलवामा गया था। तो सारे एरियाज मेरे देखे हुए, मैं तो जाता हूँ, देखता हूँ, सब लोग खुलेआम घूमते हैं, कोई किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे। हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेज रहती हैं वहां पे, ये बात आपको माननी पड़ेगी, सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पे रहती हैं, सुरक्षा के लिए रहती हैं वहां पर। Do you call them security forces? Those are occupation. What kind of security they are providing to our people? अभी आपकी फोर्सेस ने 3 मासूम लोगों की जान ली, चौथे की कस्टोडियल किलिंग में ली जान, ठीक है। डेली वहां पर जो है टारगेट किलिंग होती है, अननोन गनमैन, फ्रॉम वेयर दीज अननोन गनमैन आर कमिंग, जहां पे आपको पता कैसे चला कि ये कस्टोडियल डेथ्स हुई है, ये फेक एनकाउंटर हुआ है कश्मीर में? हाँ, आपकी तो आर्मी ने खुद एक्सेप्ट की है सर, आप शायद एक्सेप्ट किया ना, आर्मी ने एक्सेप्ट किया ना, मीडिया ने बताया ना उसको कि गलत किया है। उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वो हम नहीं बताया, मैंने भी खुद रिपोर्ट किया उस केस को कि भाई भारतीय सेना के एक यूनिट ने इस तरह से काम किया, गलत, उन्होंने मिस्टेकन आइडेंटिटी में मारा है उनको, हमने बताया। इसके बावजूद भी उनका केस चल रहा है। वो ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी में जो इंडियन मीडिया है, खुद आर्मी भी कितना एक्सेप्ट करती है, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होंगे। अगर यही कोई एक्सीडेंट, ये इस तरह की इंसिडेंट चाइना या पाकिस्तान में हो रहे थे तो पता चलता है कभी कि इस तरह की कोई मार दिया गया है? पाकिस्तान के वजीरिस्तान में सब पूरा का पूरा खाली कर दिया गया, वहां पर अटैक हेलीकॉप्टर से अटैक किया जाता था वहां पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, कभी पता चला? कश्मीर में कभी किसी हेलीकॉप्टर से अटैक किया गया? कहीं पर भी टेररिस्ट को, सोल्जर्स जो अंदर घुसते हैं, कब्रों के अंदर, घरों के अंदर घुसते हैं सिर्फ गन लेकर, और उसमें खुद मारे भी जाते हैं। आपको रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो पाकिस्तान में बताइए कि कितने मारे जाते हैं वहां पर रूम इंटरवेंशन के दौरान। ब्रिगेडियर महमूद यहाँ बैठे हुए हैं। कभी इंडिया ने कभी हैवी वेपनरी इस्तेमाल नहीं की अपने लोगों के ऊपर, कश्मीर के लोगों के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ AK-47 इस्तेमाल करती है। या फिर अगर टेररिस्ट उस घर में मारे गए हैं, वो घर अगर किसी का लगता है कि उनको वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, तो उसके घर को सिर्फ RGL से उड़ाते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि वहां पर कोई अटैक हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी, टैंक इस्तेमाल करते हो। भाई देखिए आप हमारे पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, टैंक चला देते हैं लोगों के ऊपर अगर वो डिमांड करते हैं डेमोक्रेसी के लिए। तो अटैक हेलीकॉप्टर्स, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वजीरिस्तान, कहां कहां पे नहीं इस्तेमाल किए हैं, पूरे के पूरे गांव के गांव खाली कर दिए गए हैं वहां पर। नीरज जी, मैं आपके ओपिनियन का तो रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज आप मेरे शो में हैं, मेहमान हैं। ये ABP न्यूज नहीं है जहां पे आपको झगड़ा करना पड़ेगा। आप बात करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगी, आप भी मेरी बात सुनिए। आपने अभी जैसे बात की
कि वहां पे जो इनकाउंटर्स होते हैं, ठीक है, इनकाउंटर्स में आपने देखा है कि किस तरह से घर उड़ा दिए जाते हैं मासूम लोगों के। आपने श्रीनगर में देखा एक इनकाउंटर के लिए 25 घर उड़ा दिए गए, 25 घर। जिस दिन जुनैद का इनकाउंटर हुआ था, शहराई साहब का जुनैद शहराई का इनकाउंटर हुआ था, 25 घर उड़ा दिए गए। आपको पता है एक घर बनाने के लिए एक इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, ठीक है। दूसरी आपने बात की सिक्योरिटी फोर्सेस, आई डोंट सी देम एज सिक्योरिटी फोर्स, आई सी देम एज एन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस, बिकॉज सिक्योरिटी फोर्सेस का काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है। आपको पता सिक्योरिटी देते हैं वो। सब मैं आपको पूरा मौका दूंगी बात करने का। अब आप आज आप एबीपी न्यूज पे नहीं, आज आप रिफत वानी की शो में आपको पूरा मौका मिलेगा बात करने का। तो जो आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान ने वहां से जी 40 किलो बॉम्ब भेजा, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि गली में आया, किसी को भी टारगेट किलिंग में। अभी परसों हमारे एक भाई को शहीद कर दिया गया, बाबर कादरी साहब को। मुसलसल कहे जा रहा है कि मुझे थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है। आपका मीडिया उसका रोल देखें, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट उनका रोल देखें। कोई भी हमारे हक में नहीं है। आपका मीडिया क्या कहता है? आपका मीडिया, वो जो एसके सिन्हा साहब हैं, वो जो आपके ब्रिगेडियर हैं या क्या जर्नल हैं, उनका फौरन से वो आ जाते, चैनल पे आ जाते जी ही वाज पाकिस्तानी एजेंट। भाई अगर पाकिस्तानी एजेंट था तो पाकिस्तान ने कैसे मारा उसको? ठीक है, आपके आपके अपने मीडिया की रिपोर्ट है ना, मैं तो खुद अपने से नहीं कह रही हूँ, ट्विटर आप एबीपी न्यूज पे ही ये न्यूज आई है, ठीक है। उसके बाद आप चले, आपको पता चल जाता है जी 40 किलो बम आया ऑन ग्राउंड, कौन अननोन गनमैन आ रहे हैं, किलिंग कर रहे हैं, कोई पता नहीं। आपको जो है विद इन फ्यू मिनट्स आपको पता चल जाता है कि आदिल डार ने जो है सुसाइड अटैक किया पुलवामा में। जबकि सुसाइड अटैक का ये होता है कि जब तक डीएनए नहीं होता तब तक कोई पता नहीं चलता कि किसने किया। विद इन फ्यू मिनट्स आपको पता चल गया, जबकि किसी ने उसको क्लेम भी नहीं किया और फेक वो आ गया जो है ना, इस पे वो क्लेम किया गया। तो सर कैसे आप कहते हो कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस है? कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस है? वी डोंट फील सिक्योर अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन। वहां पे हमारे कितने केसेस हुए? वहां पे हमारे रोज हमारे छोटे बच्चों को, हिब्बा ही वाज इनसाइड हर होम, 6 महीने की बच्ची, उसको पैलेट्स लगाए जाते हैं घर में। क्या आज तक कब उसको इंसाफ मिला? इंशा को इंसाफ मिला? और जो पैलेट विक्टिम्स थे, जुनैद 9 साल का बच्चा जिसको घर के अंदर गोली मार के जो है शहीद किया गया 2016 में, अब मुझे बताओ उसको इंसाफ मिला? ये तो छोटे छोटे मासूम बच्चों की बात करें जिन्होंने गन भी नहीं उठाई। और फिर जब हम आप लोगों के चैनल्स के ऊपर जाते हैं, हमारा कोई बंदा आपके जाता है, कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट जाता है, उसको आप कहते हैं कि जी पहले हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। यू डोंट लिसन अस। आप अपनी सुनाते हैं, हमारी नहीं सुनते। इज दिस डेमोक्रेसी? जी जी, ये मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी पैनलिस्ट कोई आया है तो उसको बोलते हैं कि आप जिंदाबाद बोलिए या ये इस तरह से बोलिए। हो सकता है कि वहां पर पूरे इसमें बड़े देखिए, आप कभी पार्टिसिपेट करिए, आप कभी वो रिपब्लिक टीवी पे या टाइम्स नाउ पे जाके पार्टिसिपेट करिए। या अभी, तो आप अभी कुछ दिन पहले रिफत वानी साहिबा ने एक वो पोस्ट किया था कुछ, तो उसमें वो क्लिप था एक, उसमें देखना चाहिए था वो क्या कह रहे थे वो लोग। आप और देखिए, आप ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि आप ये डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी। देखिए, कश्मीर में आप अगर डेमोक्रेसी कह रहे हैं, सो इट्स नॉट, आप दो ही चीजें, या तो आप समझ नहीं रहे हैं इस चीज को। अब डेमोक्रेसी तो वैसे इंडिया में नहीं डेमोक्रेसी है। आज ही मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, वो राहुल रॉय और सबा दीवान, उनको आज दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट में थे, वो सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में थे। आप किस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? सर, लेकिन अगर आप इंसाइट करेंगे वायलेंस तो आपको तो बुक करना ही पड़ेगा ना आपको। लेट मी फिनिश इट। राहुल रॉय, सबा दीवान कोई वायलेंस पे नहीं इन्वॉल्व थे। आप हर चीज को वो उनके वो बीजेपी स्पीक
को नहीं उसको प्रेजेंट करिए। और जहाँ तक कश्मीर का, क्योंकि ये शो जो है वो कश्मीर पे है, लेट्स कन्फाइन टू आवरसेल्फ टू कश्मीर। बिल्कुल। कश्मीर में इंडियन आर्मी हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन crimes against humanity over and over again, over and over, over and over। ये एक दफा की बात नहीं है। मैं ये तो 1990 में मेरा कोलीग ज़हूर जावेद, he was pillion riding. Zahur Javed was 27-year-old lecturer of law in Kashmir University. He was pillion riding। और कभी आप ज़हूर जावेद से मिले, मेरी उस आज तक कभी उसकी शक्ल मेरे दिमाग से नहीं जाती है। हमेशा वो, he was always a smiling, well-behaved person. He was riding pillion in Khaniyar, and its Indian security force took a pot shot at him, और उसको he was killed instantaneously. Zahur Javed was not a terrorist. Zahur Javed was not protesting against anything. He was simply going to his home. He was pillion right. हमारी यूनिवर्सिटी में एक इलेक्ट्रिशियन था, वो अपने किसी नेबर के यहाँ जा रहा था, उसको उसी की लेन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पोल के साथ बांध के दे शॉट हिम। आपको मैं आई कैन गो एंडलेसली कैटलॉग। अगर कोई कंट्री, अगर कोई पार्ट है, अगर ऐसा है तो दिल्ली में क्यों नहीं ऐसी चीजें हो रही? बिकॉज कश्मीर आप बेसिक उसको एक्सेप्ट करिए, दिस इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और आप एकदम से आप आजाद कश्मीर को भी लेना और गिलगित बल्तिस्तान, आप कभी हिस्ट्री को, द बेसिक थिंग इज कभी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करिए। गिलगित ठीक है, आजाद कश्मीर को तो चलिए ठीक है, आप आजाद कश्मीर को लेना चाहते हैं तो जस्ट गो एंड ट्राई। आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, the moment accession was this temporary accession was signed by Maharaja, Gilgit-Baltistan immediately joined Pakistan. That was never any dispute. Gilgit-Baltistan is not in any dispute. It never was part of India. हम अभी तो वो सारा जहान हमारा है, तो वो तो फिर आप कहीं पे भी आपने आप जो लद्दाख को, ये जो JNK का स्टेटस चेंज करके, यू हैव हैंडेड ओवर लद्दाख टू चाइना, बिकॉज लद्दाख इज क्लोजर टू चाइना, लद्दाख इज तिब्बतियन कल्चर, they can lay claim all over Ladakh because you changed the unilaterally status of that state. इसमें नीरज जी ने एक और बात भी की थी ना सर, उन्होंने कहा कि लद्दाख का कल्चर जो है वो कश्मीर से नहीं मिलता। I accept, ठीक है, हमारा कल्चर उनसे नहीं मिलता, जम्मू के साथ नहीं मिलता। आप मुझे बताएं महाराष्ट्र का कल्चर क्या दिल्ली के साथ मिलता है? बिल्कुल। या जो बंगाल का कल्चर जो है वो उनके साथ मिलता है। आप जो हमारा नीरज जी, आप हमारा डोमिसाइल लॉ चेंज करें, पर हमारा स्टेट सब्जेक्ट आपने वो चेंज कर दिया, वहां पे लाके इंडियंस को बता रहे हैं, तो क्या इंडियंस का कल्चर हमारे साथ मिलता है? कश्मीर के साथ ना जुबान मिलती है, ना ही खाना पीना, उठना बैठना, नॉर्म्स, कल्चर, वैल्यूज, कुछ भी नहीं मिलता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो फिर हमारा हिस्सा नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि हमारी उनके साथ कल्चर नहीं मिलता। दिस इज अब देखिए डेमोक्रेसी के नाम पे क्या हो रहा है वहां पे। ये आप ही के फेसबुक से 500,000 non-locals have been given domicile. So Kashmiris do not have control over their universities. जो सेक्रेटेरिएट जो मूव होता था, that does not happen now. Waqf board has been taken over by central government. So कश्मीर में तो कोई कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन में रहा ही नहीं। आप उनको बोलने दीजिए थोड़ा। मैं नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नीरज जी, बाहर के लोगों को आने ही नहीं दिया जाता था। आप दोबारा से बोलिए, सॉरी हम आपको सुन नहीं पा रहे थे, आपका माइक सुन नहीं पा रहे थे। जी, आप अपना पॉइंट दोबारा से।
जी जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो आप आइडेंटिटी की बात कर रही हैं, इसीलिए अलग अलग स्टेट्स बनाए गए हैं भारत में। जो गुजरात के लोग हैं, गुजराती कल्चर, उनका अलग स्टेट है। महाराष्ट्रीयन या मराठा जो है, उनके लिए महाराष्ट्र स्टेट दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनका अलग है। एक मिनट, उसके लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडिया जो है मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स है, अलग अलग देशों, अलग अलग जो कल्चर्स है उनका एक मेल्टिंग पॉट है। उसी तरह से कश्मीर भी है। कश्मीर में क्योंकि लोगों का मिंगल नहीं हो रहा था, गुजरात के लोग महाराष्ट्र जा सकते हैं, रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लोग तमिलनाडु जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में लोग नहीं आ पा रहे थे। इसलिए आर्टिकल 370 हटाया गया है कि उनके मन से वो हटे कि हम अलग हैं, एक ही देश है, उसी का हिस्सा है वो। जो उनको अलग आइडेंटिटी दी गई थी 70 साल के लिए, जिसके लिए दी गई थी उनके डेवलपमेंट के लिए, वो नहीं हो पा रहा था वहां पर, इसीलिए उनको हटाया गया है। अब बिहार यूपी के लोग आएंगे, जम्मू कश्मीर में रहेंगे, लोग मिलेंगे एक दूसरे से। इसका मतलब ये नहीं कि आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी उनकी, कभी नहीं हुई। गुजरात के लोगों की आइडेंटिटी खत्म हुई, तमिलनाडु के लोगों की आइडेंटिटी खत्म हुई, उनकी पहचान खत्म हुई। क्या उनका कल्चर खत्म हो गया कि अगर उत्तर प्रदेश के लोग या बिहार के लोग जाके तमिलनाडु में रहते हैं, या गुजरात के लोग महाराष्ट्र में चले जाते हैं, महाराष्ट्र के लोग गुजरात में जाते? नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब तक आपके बीच में आप में भावना नहीं आएगी कि हम इस देश का हिस्सा हैं, तब तक आप ऐसे ही सेपरेटिज्म की बातें करते रहेंगे, अलग बातें करते रहेंगे, अपना अलग स्टेट बनाने की बात करते रहेंगे। इसीलिए आर्टिकल 370 हटाया गया कि उनकी पहचान जो है वो देश के साथ है, भारत के साथ है, उसमें रहे। वहां पर कश्मीर के लोग आते हैं, कितने बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हैं, बैंगलोर जाते हैं, आईटी कंपनीज में काम करने के लिए जाते हैं। तो बाहर के लोग क्यों नहीं जा सकते हैं कश्मीर में? आएंगे, वहां पर एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, कल्चर जानेंगे एक दूसरे का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पहचान खत्म कर दी जाएगी। तो इसलिए ये पहचान के लिए ही किया गया है कि अपनी आइडेंटिटी बना के रखें, लेकिन वहां पर लोगों के साथ आपस में मेलजोल बढ़ाएं। महबूब साहब, क्योंकि काफी देर से मैं सुन रहे हैं, मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा कि गुजरात के लोग जो है दिल्ली में जा सकते हैं, कहीं और पे जा सकते हैं। गुजरात इज नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ठीक है? दैट इज नॉट डिस्प्यूटेड इन 3 न्यूक्लियर पावर्स, ठीक है? इट्स स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उसमें आपको डिफरेंशिएट करना होगा। और अगर आपने ये शुभ कार्य करना ही था, ठीक है, ये शुभ कार्य आपने करना ही था, आर्टिकल 370 हटाना था, तो आपने आर्टिकल 371 बी, वो 2, 3, वो जो आपने 73, 74, 75 आपने 7 सिस्टर स्टेट से क्यों नहीं हटाया? ये शुभ कार्य आप वहां से करते, क्योंकि आपको दिल बड़ा रखना चाहिए था ना। आप यू आर अ हिंदू मेजोरिटी स्टेट कंट्री, ठीक है? तो आपको जो है दिल बड़ा रखना चाहिए था कि कश्मीरी ऑलरेडी थ्रेट फील कर रहे हैं कि हम सिक्योर नहीं है अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन, इंडिया के साथ। तो आपको उनका पहले ट्रस्ट गेन करना चाहिए था कि आपको उनके सर पे एक और जो है बम फोड़ना चाहिए था। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आती हूँ और उसके बाद मैं आपकी तरफ नीरज जी दोबारा से आती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आप हमारी डिस्कशन, सॉरी, हमारे जो क्वेश्चन है वो नीरज जी के साथ थोड़ा सा लंबा हो गया, आपकी तरफ हम आए हैं दोबारा। मैं जानना चाहती हूँ, आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद जो पूरा स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का जो एक स्टेटस चेंज हुआ है, उसके बाद जो पाकिस्तान स्टेटस चेंज करने जा रहा है, उस पे इंडिया के रिजर्वेशन हैं, वहां पे शायद लोकली लोगों के भी रिजर्वेशन होंगे। तो पाकिस्तान इस मौके पर, जब ऑलरेडी डिस्प्यूट इतना बढ़ चुका है, चाइना इन्वॉल्व हो चुका है, तो इस मौके पर पाकिस्तान जो गिलगित बल्तिस्तान और एजेके में जो रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है, उसकी पाकिस्तान को क्यों जरूरत पड़ी? और अगर उन्हें रिफॉर्म्स करने ही थे तो इससे पहले क्यों नहीं किए गए? जी बिल्कुल, मैं इसकी तरफ आता हूँ, लेकिन इससे पहले ये जो 370 हटा है, ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट था, उसका हिस्सा उसका ये था कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया कंटिग्यूस विद द पाकिस्तानी स्टेट वो पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। कश्मीर फॉल्स इन दैट, इट इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया और पाकिस्तान के एरिया के साथ कंटिग्यूस है, तो इसलिए स्पेशल स्टेटस दिया गया था। और इसलिए वहाँ पर जो मुसलमानों की अक्सरियत है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। 370 के हटाने से एक कोशिश है कि वहाँ पर दूसरे लोगों को बसाया जाए और उनकी मेजॉरिटी को कम किया जाए। ये जो है ऑफेंस, ये वार क्राइम में आता है। जेनेवा कन्वेंशन के आर्टिकल 4 में ये आता है, इंडिया इज ट्राइंग टू चेंज द डेमोग्राफिक
तनासिब ऑफ कश्मीर, तो ये दे आर कमिटिंग ए वॉर क्राइम, एंड जब टाइम होगा तो इंडिया और द प्रेजेंट लीडरशिप और मोदी विल बी ट्राइड फॉर वॉर क्राइम्स. There have been people, I mean, they thought that they will never be tried, but we will see. गुजरात में जो मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, अभी पिछले बार दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, तो और यहाँ पर जो कश्मीर में वो जेनोसाइड का सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि यहाँ की वो चेंज किया जाए. तो ये दूसरी बात जो आपने पूछी है वो गिलगित बल्तिस्तान की, असल में जो अभी लाइन ऑफ कंट्रोल है और कोई फ्यूचर का कह नहीं सकते. द कम्युनिकेशन बिटवीन गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर तकरीबन नॉन एग्जिस्टिंग है. वो लोग यहाँ पर गवर्नमेंट के जो फंक्शनरीज है और दूसरा जो लैंग्वेज का डिफरेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज आ रही हैं इसके अंदर. आर्मी का मेरे साथ रैंक लगा हुआ है, मगर मैं होम सेक्रेटरी होम एंड ट्राइबल अफेयर, फिर उसके बाद सेक्रेटरी फॉर फाटा. ये एक साहब जो है वो बात कर रहे थे कि फाटा में क्या हुआ, तो उस वक़्त मैं फाटा का सेक्रेटरी था, उससे पहले मैं होम सेक्रेटरी था KPK में. तो हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सोचते रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के साथ क्या किया जाए ताकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल हो. तो इसलिए जो मौजूदा एफर्ट है एक सूबे की, नंबर ऑफ ऑप्शंस हम कहते रहे हैं. कभी कहते हैं कि KP का खैबर पख्तूनख्वा के साथ इसको कनेक्ट किया जाए और यहाँ डिप्टी गवर्नर बिठाया जाए, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट है आज़ाद कश्मीर का, वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ज़मीनी रास्ते मौजूद नहीं हैं. लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ रास्ता खेल से निकलता है, इधर आता है और इन इलाकों पे कोई नहीं ट्रैफिक है. ये आते हैं पहले इस्लामाबाद पिंडी और फिर कश्मीर जाते हैं. तो ये जो मौजूदा स्टेटस है, यानी कश्मीर के ऊपर इंडिया का कब्ज़ा है और उसकी वजह से जो आज़ाद कश्मीर के इलाके हैं उसमें ये इलाका ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम है और इसको सीधा करने के लिए जो मौजूदा इंतज़ामात है ये किए जा रहे हैं और मेरे ख्याल में इससे मसला हल होगा. इसमें कोई शक नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान हिस्सा है कश्मीर का, जब ये आज़ाद होगा उसके साथ मिलाया जाएगा, ये पूरा एक सूबा होगा पाकिस्तान का इंशाअल्लाह. नीरज जी, आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी, क्योंकि मैं आपको ज्यादा मौका देना चाहती हूँ बात करने का और आप ये ना लगे कि मैंने आपको आपका पॉइंट पक्ष रखने का मौका नहीं दिया. मुझे आपको सवाल जानना है. वो सवाल ये जानना है कि आपने अभी जैसे थोड़ी देर पहले कहा, क्योंकि मैं उसी टाइम ये सवाल पूछना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि ब्रिगेडियर साहब काफी देर वेट कर रहे थे तो मैं उनसे सवाल बनता था. आपने कहा कि इंडिया ने जो है वो इसको अपनाइयत के लिए, अपनाने के लिए, कि ताकि कश्मीरी जो है इसको अपनाएं, 70 जो है उसको रिवोक किया. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इंडिया को इतनी क्या जल्दी थी कि वहां पे इतनी जल्दी वो डोमिसाइल जो है वो बांट रहे हैं, वहां पे उनको अभी तक तकरीबन जो है 20 लाख के करीब जो है डोमिसाइल जो है वो दिए जा चुके हैं. इतनी क्या जल्दी है? आप कश्मीरियों को डरा रहे हैं या उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे? तो डराने में आता है, उनको लग रहा है कि हमारी जमीन सिक्योर नहीं है, हमारी जॉब्स के ऊपर जो है अब इंडियंस आएंगे. ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि आप उनको विन करने के लिए कर रहे हैं. तो ये तो आप उनको और ज्यादा स्केयर कर रहे हैं कि हम क्योंकि पावर रखते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास गन है, हमने फौज ऑलरेडी आपकी जमीन पे उतारी हुई है, तो रूल हमारा, राज हमारा, जो मर्जी हम करें. ये तो वो वाली बात हो रही है वहां पे. नहीं रिफत, ऐसा नहीं है कि गन है तो कुछ भी कर सकते हैं. सबसे पहला एक चीज मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा. जो ब्रिगेडियर महमूद साहब ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर का हिस्सा है, जो राजीव जी कह रहे थे हिस्ट्री की बात की वो गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर का हिस्सा नहीं, तो वहां पर वो दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. वो ब्रिगेडियर महमूद साहब और हम लोग एक ही उस पर है, फ्लाइंग पे है कि गिलगित बाल्टिस्तान भी कश्मीर का हिस्सा है, ये हम लोग मानते हैं. और गिलगित बाल्टिस्तान को अलग प्रोविंस बना रहा है, पाकिस्तान बना रहा है, उसको अलग किया, उसको पाकिस्तान ने किया. तो जब पाकिस्तान कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता है लद्दाख को अलग, जो आपका बेसिक सवाल है.
नहीं, दूसरी चीज जी, अब मैं दूसरी जी, अब मैं दूसरी चीज पे आता हूँ। अब दूसरी पे आता हूँ कि आपने कहा कि मॉरल आपकी जो गवर्नमेंट है उसके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं रहती। सब कुछ है। आर्टिकल 370 किसने पास किया था राजीव जी? एक सेकंड मैं राजीव जी की तरफ जाऊंगी। एक सेकंड राजीव जी, आपका माइक ऑफ है। मैं कहना चाह रही हूँ आर्टिकल 370 जो है वो एक लीगल आपके साथ डॉक्यूमेंट साइन हुआ जो महाराजा बिल्कुल लीगल है, पार्लियामेंट ने पास किया, भारत की पार्लियामेंट ने पास किया उसको। महाराजा का बेटा जिंदा है, आपने उससे भी नहीं पूछा, आप अपनी सुप्रीम कोर्ट को अपने एतमाद में नहीं लिया, आपने अपने अब वो राजा नहीं है, अब वो एक ऑर्डनरी सिटीजन है। और वहां पर अगर वो उनके जो पुत्र है पॉलिटिक्स में है, वो पॉलिटिक्स में अपना हिस्सा लेते हैं, पार्लियामेंट में जाए, अगर कुछ बात उनको अपोज करनी है अपने पॉलिटिकल फोरम पे जाए, उस पर बातचीत कर सकते हैं। मेरा कंसर्न ये है कि आपने पाकिस्तान को और चाइना को मौका दिया। मेरा कंसर्न ये है कि आपने हमारी स्टेट को मजीद डिवाइड करने का मौका दिया। डू यू हैव पावर टू गेट आवर लैंड बैक फ्रॉम चाइना? बिल्कुल, ले ना ले, लेकिन ऐसे ही जैसे कि पीओ के ले ना ले, अपना रेजोल्यूशन पास हो चुका है। और एक चीज पे, बेसिक चीज पे आता हूं, जो राजीव जी ने कहा और आपने कहा कि जो चाइना की तरफ से जो अभी जो टेंशन चल रही है वो आर्टिकल 370 हटने से हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्टिकल 370 से हटना होता तो वो पिछले साल ही अगस्त में कर देते, कुछ ना कुछ करते, लड़ाई करते, हमला बोल देते इंडिया के ऊपर। नहीं किया था वो, उन्होंने तब किया जब कोरोना के टाइम में पूरी दुनिया जो थी बंद थी, लॉकडाउन थी, उस वक्त वो उनका एग्रेशन था, एक्सपेंशनिज्म। जो चाइना, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहां की, जो कम्युनिस्ट रूल्ड स्टेट है, वो अपना इलाका अभी स्लाइसिंग करके आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं। अक्सई चीज तो लिया था 1962 में लिया था, हम लोग मानते हैं उस वक्त हार हुई थी, उस वक्त इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था कि चाइना को अपोज कर सकता, लेकिन इस बार पूरी तरह से रोक दिया है उन्होंने। पूरा दुनिया जान गई है कि चाइना का एक्सपेंशनिज्म अगर कोई रोक सकता है तो वो इंडिया ही रोक सकता है। इंडिया ने रोक दिया है और अब चाइना बातचीत के टेबल पर आ गया है, कह रहा है कि हमें बातचीत करनी है, आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। एग्रेशन करने की कोशिश की, रोका वहां पर, 62 की तरह लगातार बढ़ते हुए आ रहे थे, अब उनको रोक दिया गया है वहीं पर जहां पर एलएसी पर है, इसीलिए बातचीत कर रहे हैं। अगर आर्टिकल 370 से कोई लेना देना नहीं है उनका। आर्टिकल 370 उस वक्त उन्होंने कहा था, उनके किसी एक एम्बेसडर ने, किसी ने कहा था कि नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए था तो उसी वक्त अटैक करते ना आप बॉर्डर पर आकर एलएसी पर। उस वक्त क्यों नहीं किया आपने अटैक? आप कर रहे हैं अब आके अप्रैल में कर रहे हैं, 9 महीने बाद आकर कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। आप कोरोना के टाइम में सब जब एक्सरसाइज बंद कर दी गई, आर्मी की बंद कर दी गई, तब आप अटैक कर रहे हैं चुपचाप आके। और उस वक्त भी, उसमें भी भारत ने अब उल्टा उन पर वार कर दिया है। अब वहीं पर रुक गए हैं जहां पर है वो, अब नहीं आगे बढ़ेंगे, इतना मैं बता रहा हूं आपको। आपने कभी चाइना की स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग पे गौर किया है? आपने कभी चाइना की स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग पे गौर किया है? वो जो आप ये जो देखिए, ये पहले या तो आपको ये कहूँ कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये मेरा और महमूद साहब का कंट्राडिक्शन था, गिलगित कंट्राडिक्शन कोई नहीं था। मेरा ये कहने का मतलब था, गिलगित जो है J&K जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट था, लेकिन गिलगित का पाकिस्तान के साथ शामिल होना, उसमें कभी कोई डिस्प्यूट नहीं था, क्योंकि गिलगित ने एक हफ्ते, एक्सेशन के एक हफ्ते के बाद गिलगित पाकिस्तान ज्वाइन हो, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था। आप वो तो जो ये है कि आप कहें कि हम आजाद कश्मीर भी लेंगे, आप गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे। सर ऐसे तो आपके पास भी है कश्मीर ना, वो तो राजा ने साहब ने भारत को दिया था ना पूरा कश्मीर। देखिए जो एक्सेशन था, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन जब की थी उन्होंने, तो पूरा भारत को दिया था ना उन्होंने। एक्सेशन वाज प्योरली टेम्परेरी। आप मौसम का हाल दिखाते हैं, वो भी दिखाना बंद कर दिया जब से चाइना है। Accession was temporary, purely temporary. No sir, it was permanent. आप नेहरू की स्पीचेस पढ़िए, नेहरू के पार्लियामेंट में स्टेटमेंट्स पढ़िए। आप अगर आप उन सब चीजों को देखेंगे नहीं, अब वो जो ये कहते से तो नहीं हो जाता कि नहीं। एक्सेशन वाज टेम्परेरी, इट वाज सब्जेक्ट टू प्लेबिसाइट, तो वो जो कभी किसी भी इंडियन गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया। और उसके बाद ठीक है, अगर आपने उसको अपने साथ ही रखना था तो कम से कम इंसाफ तो करते उस जगह के साथ। हर एक इंडियन गवर्नमेंट ने नाइंसाफी की। और अब मोदी गवर्नमेंट से कोई कैसे इंसाफ
एक्सपेक्ट कर सकता है। सर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, इंसाफ की बात नहीं, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। जी हाँ इस वक्त की जो है मोदी साहब का ओरिजिन तो सब लोगों को मालूम है। मोदी साहब का ओरिजिन जो है वो सब लोगों को मालूम है। उनका ओरिजिन कहाँ से है? He originates from 2002 Gujarat riots. That is his origin. So that was the first program that he instigated against Muslims was in Gujarat. So वही अब वो पूरे इंडिया पे अगर वो लागू करना चाहते हैं तो वो that's another thing. और वो कर रहे हैं। नीरज जी, आपको नहीं लगता कि पूरा जो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है ये थ्रेट है पूरे इस रीजन के लिए, पूरे साउथ एशिया के लिए, क्योंकि 3 न्यूक्लियर पावर्स आर इन्वॉल्व। LAC वाज नेवर एक्टिव, ठीक है, वहां पे आपका एग्रीमेंट था जो कि मिस्टर मोदी की मेहरबानी से जो है, मोदी जी की मेहरबानी से वो भी खत्म हो गया, ठीक है। आर्टिकल 370 के साथ वो भी रिवोक हो गया कि भाई हम एक दूसरे पर गन नहीं चलाएंगे, इट मींस नो वॉर, ठीक है, वो भी अब खत्म हो चुका है। तो क्या आप नहीं समझते हैं कि ये पहले सिर्फ LOC आपके साथ एक्टिव थी, अब LAC भी एक्टिव है। अब LAC को भी आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे एग्रीमेंट साइन करके आए, अब तो उसको बॉर्डर का दर्जा मिल चुका है, ठीक है। अभी आपके दरमियान बॉर्डर बन गया है, LAC भी नहीं रहा, एक्टिव हो चुका है। डोंट यू थिंक कि इन फ्यूचर इट्स अ थ्रेट फॉर साउथ एशिया कि पूरा का पूरा, अगर लड़ाई उठी, गोली की जुबान कोई नहीं समझता, गोली किसी की जुबान नहीं समझती, ना उसके कान है, ना उसका जो है ना कोई वो टारगेट लगा तो लगा, नहीं लगा तो कहीं और भी लगा, ठीक है। एट द एंड जो सबसे कमजोर आप तीनों में से होगा वो न्यूक्लियर का वेपन का यूज करेगा। डोंट यू थिंक कि इसको बहुत अच्छे से जो है रिजॉल्व किया जा सकता था, स्टेट की लोगों को जो है उसको राइट देके वो किया जा सकता, जैसा कि जो 1947 में वादा किया गया स्टेट के लोगों से, इंडिया ही गया था यूनाइटेड नेशंस में कि हम जो है इनको राइट देंगे। डोंट यू थिंक अगर उसी हिसाब से, आई थिंक नेहरू वाज देन मोर वाइज देन योर मिस्टर मोदी, कि उसको पता था कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है इन फ्यूचर। तो आप नहीं समझते कि अब जो है मिस्टर मोदी ने इसके जो 2-3 अरब लोगों की जिंदगी जो है वो बनानी है? नहीं रिफत, ऐसा नहीं है। अगर आप अभी अगर बात करें LAC की बात करें, जो 3488 किलोमीटर लंबी LAC है भारत और चीन के बीच में, वो डिस्प्यूटेड है, वो 1962 के युद्ध से डिस्प्यूटेड है। आपको सेटल तो करना पड़ेगा ना उस बॉर्डर को। आप तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, चाइना कैसे कर रहा है, एक्सपेंशनिज्म कर रहा है, आपका इस्लामी स्लाइसिंग करके धीरे धीरे करके एरियाज आपको ले रहा है। जब भारत करगिल युद्ध लड़ रहा था उस वक्त उसने कितना एरिया हड़प लिया, लद्दाख के अंदर कितनी पहाड़ियां उसने अपने अंदर में अपने कब्जे में कर ली, फिंगर एरिया जो था वो अपने अंदर में कर लिया। उस वक्त तो भारत इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो टू फ्रंट वॉर पर लड़ सकता था। एक तरफ जहां करगिल में लड़ाई लड़ रहे थे तो चाइना की तरफ नहीं लड़ सकते थे उस वक्त, तो इसीलिए भारत ने कहा ठीक है ये स्ट्रांग कंट्री है, इसको ले जाने दीजिए। किसी ने कुछ बोला भी नहीं, कभी आवाज भी नहीं सुनी होगी। लेकिन आज अब इस वक्त बदल चुका है भारत पिछले 15-20 साल में, भैया आपको समझना पड़ेगा। इंडिया अभी इस वक्त, और आपको लगता है कि चाइना उसी जगह पे रुक गया है? चाइना नहीं बदला, बिल्कुल रुक गया, जी बिल्कुल रुक गया, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को होल्ड करके रखा हुआ है, जो पूरी बिल्कुल रुक गया, ताज बना के रखा हुआ है, वो अभी 1962 में है। एंड इंडिया जो है वो नहीं वो 2020 में ही है। लेकिन ये वाला जो भारत है ये 62 वाला नहीं है, ये 2020 है। इसने रोक दिया है चाइना को, और चाइना भी आ गया। 3 बार डिफेंस मिनिस्टर ने उनके कहा कि मुझे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत करनी है। क्यों बातचीत करनी है आपको? क्योंकि वहां रोक दिया गया है, वहां पर चाइना का एक्सपेंशनिज्म रोक दिया गया है वहां पर। और एक बात जो आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं, इंडिया और चाइना की चाहे बड़ी न्यूक्लियर कंट्रीज जरूर हो, लेकिन फायरिंग कितनी बार हुई? पिछले 40-45 साल में कभी फायरिंग नहीं हुई, इस बॉर्डर पर नहीं हुई है। धक्का मुक्की होती थी, 93 से एग्रीमेंट हुआ, इस बार भी 3-4 बार फायरिंग हुई है, लेकिन सिर्फ हवा में फायरिंग हुई है। अभी भी जो सोल्जर्स है लड़ते हैं, जो गलवान घाटी में जो डेथ्स हुई थी उसमें भी किसी ने गोली नहीं चलाई थी, वहां पर हाथापाई से ही लड़ाई से ही डेथ हुई है वहां पर, चाहे चाइना की हुई चाहे इंडिया की हुई हो। तो अभी भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है दोनों कंट्रीज, मानते हैं जो भी एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। लेकिन अगर हाँ चाइना की तरफ से अगर लगातार अगर इस तरह की कोशिश की जाएगी, एक्सपेंशनिज्म की कोशिश की जाएगी, एग्रेशन यानी कि आक्रामक आप तेवर दिखाएंगे, तो अब वो भारत 99-62 वाला नहीं है, वो आपको जवाब दे सकता है। आपको नीरज जी, आपको नहीं लगता
आप कह रहे हैं कि जो ना भारत जवाब देगा, वो आपने कहा कि वहां पे गोली नहीं चल रही है। जब कान पकड़ने से काम चल रहा है तो मुर्गा बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, उनका तो आप उनको जो चाहिए था वो ले रहे हैं और लेके रहेंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि चाइना ने आपके साथ जो है एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम मजीद फोर्स नहीं लेकर आएंगे, वो पहले ऑलरेडी इतनी वहां पे पहुंचा चुका है, वो वहां पे फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो बिछा चुका है, वो वहां पे 5G ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है, वो वहां पे अपने मिसाइल हर चीज वो पहुंचा चुका है, वो पूरी प्लानिंग कर चुचुका है, वो अरुणाचल तक पहुंच चुका है। ठीक है, और आप स्टिल अभी कह रहे हैं कि हम जो है अभी ये 1962 का इंडिया नहीं है, तो वो जो स्पेस से कंट्रोल कर सकता है सारी चीजें, उसको तो जमीन पर लड़ने की ही जरूरत नहीं है। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, आप हमारी डिस्कशन अभी तक सुन रहे थे। पाकिस्तान का हमेशा से क्लेम रहा है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का अटूट अंग, शाहरग है, सॉरी अटूट अंग इंडिया का क्लेम है, शाहरग है। तो शाहरग में क्या लद्दाख नहीं आता? आपका क्या स्टांस है जो इस टाइम डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसमें आप लोग जो है अपनी क्या व्यू पॉइंट है? पाकिस्तान मेरे ख्याल में सॉरी मैं सुन नहीं पा रही आपको। वो लद्दाख जो है वो कश्मीर का हिस्सा है और सच कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का क्लेम है। जो इंडिपेंडेंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी उसका ये हिस्सा है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का है। लेकिन जहाँ तक LAC का ताल्लुक है, इंडिया और चाइना के दरमियान इसके ऊपर डिस्प्यूट है। अगर जब ये पाकिस्तान का हिस्सा होगा और ये डिस्प्यूट रहेगा तो पाकिस्तान आराम से उनके साथ बैठ के चाइना के साथ इसका तयन करेगा और इसको हल कर दिया जाएगा। और उसके ऊपर जहाँ चाइना का क्लेम है चाइना की जगह पे कब्जा कर लेगा, जमीन पे कब्जा कर लेगा, वो फिर इंडिया पाकिस्तान की भी क्यों सुनेगा? वो इंडिया की क्यों सुनेगा? वो किसी और मुल्क की क्यों सुनेगा? क्योंकि वो भी तो इस खित्ते का चौधरी बनने के चक्कर में है, वो भी तो इस खित्ते का न्यूक्लियर पावर बनने के चक्कर में है। तो पाकिस्तान कैसे वो सोच सकता है कि वो इस मामले पे जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और इंडिया से जमीन लेगा, वो स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को देगा? ये जो चाइना के सदर हैं शी जिनपिंग, वो इंडिया में आए थे और उन्होंने वहाँ ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना इकट्ठे बैठ के इस मसले का हल कर सकते हैं। और इंडिया ने इस खबर को ही छुपा दिया और ये उनका डिमांड है अभी भी कि इस एरिया में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को तीनों को बैठ के फैसला करना चाहिए। क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ये कहते हैं कि 3000 किलोमीटर बॉर्डर है चाइना के साथ, वो कहते हैं कि नहीं 2000 है, बाकी जो है वो बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ है, बाकी बॉर्डर जो है वो कश्मीर के साथ है और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। तो सच इसमें, और ये खासकर जिस जगह ये बात कर रहे हैं दौलत बेग ओल्डी DBO, यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर मिल रहा है, पर्टिकुलरली जंक्शन पॉइंट है। तो इंडिया को पता होना चाहिए और इसलिए इसमें पाकिस्तान की रेलेवेंस, अभी ये बैठना चाहते हैं मर्जी है, ना बैठना चाहते हैं तो जब इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा तो चाइना के साथ जो भी मेरे ख्याल में चाइना के पास तो इतनी ज़मीन है कि वो अपनी ज़मीन देना चाहते होंगे पाकिस्तान को। जो हमने इनके साथ बॉर्डर सेटलमेंट किया गिलगित बल्तिस्तान में 65 के करीब 60s में ये हुआ, तो हमें 60,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका उन्होंने दिया हमें। ये जब कश्मीर जो है यानी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, जब आपने कहा कश्मीर, आप इस पूरे को इंक्लूड करते हैं, जम्मू लद्दाख इस पूरे को इंक्लूड करके कहते हैं, या सिर्फ आप सिर्फ कश्मीर जो
इलाका है उसकी बात करते हैं। दूसरा मेरा आपके यहाँ पे एक और मेरा पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया का तो क्लेम है कि भाई हमारा अटूट अंग है, लेकिन पाकिस्तान का क्लेम है कि, और पाकिस्तान का आर्टिकल 257 भी कहता है कि हम अगर जो है ना हम कश्मीर को राइट देंगे कि वो अपना फैसला खुद करें, यानी स्टेट के लोगों को फैसले का हक देंगे कि वो हमारे साथ रहना चाहें या अपना अलग एक सेटअप बनाना चाहें। तो पाकिस्तान जब भी कहता है और फिर जब वो वहीं से क्लेम करता है कि हम जो है लाइक ये हमारा हिस्सा है, हमारा शहरग है, तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते दोनों बातें आपस में? दरअसल जो पार्टीशन के प्रिंसिपल्स थे, पार्टीशन के प्रिंसिपल में ये था कि या इंडिया का हिस्सा रहेंगे या पाकिस्तान का, सिर्फ दो ऑप्शन थे, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं था। और उसमें ओवरराइडिंग प्रिंसिपल्स यही थे कि अगर वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और कंटिग्यूअस है पाकिस्तान के इलाके से, पाकिस्तान का हिस्सा होगा। इसमें इंडिया तो कहीं आता नहीं है, वो महाराजा भी इसमें किधर आया, वरना जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। वहाँ पर मुसलमानों की मेजॉरिटी नहीं थी, तो उसको ज़्यादा पाकिस्तानी लीडरशिप ने कोई वो नहीं किया, फॉलो अप नहीं किया। वरना इसी के ऊपर जो पटेल साहब है उन्होंने कहा था कि और हैदराबाद कि हैदराबाद हमारी तरफ आए और उधर चला जाए। तो इसके ऊपर जो हमारा क्लेम है वो जिस तरह पाकिस्तान के बाकी हिस्से हैं उसी तरह कश्मीर भी एक हिस्सा है मुस्लिम मेजॉरिटी वाला। तमाम रास्ते पाकिस्तान की तरफ आते हैं और पाकिस्तान की तरफ से जाते हैं, तो कश्मीर पाकिस्तान का ये जो है एक ऐसा हिस्सा है जो नेचुरली कोई भी हो सकता है। जोर के ऊपर आप एक टेरिटरी कुछ अरसे तक जिसके ऊपर जंगें भी हुई और आप समझते हैं कि शायद हम इसको रख सकते हैं फॉर एवर, ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको जल्द या बदेर जाना होगा, मोदी जी या कोई और हो, पहले भी अभी भी नेहरू भी इस पे पहुंचे थे कि वी डू नॉट बिलीव इन फोर्स्ड मैरिजेस, और उन्होंने वादा किया था कि वो कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करेंगे। तो मेरे ख्याल में कश्मीर की मेजॉरिटी के लोग भी यही चाहते हैं, वरना बीच में है कुछ इस तरह के, वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो या हमारे अपनी मर्जी हो। तो ये मर्जी उस वक्त जो पार्टीशन प्रिंसिपल्स है उसमें थी नहीं। इस तरह हमारे यहाँ बड़े स्टेट्स हैं, जैसे बलूचिस्तान है या दीर का स्टेट था नवाब, उसने कहा था कि मुझे अफगानिस्तान के साथ मिलाया जाए, तो किसी को भी ये इख्तियार नहीं था। जो इंडिया भी अभी ही ये इकट्ठे हुए हैं, वरना तो यहाँ पर स्टेट 500 से ज़्यादा स्टेट्स थे और उसमें कुछ मुसलमान भी थे जो स्टेट के सरबराह थे। लेकिन ये है कि जो प्रिंसिपल किया गया, हिंदू मेजॉरिटी एरियाज दैट साइड, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया दिस साइड, और वो कंटिग्यूटी इनमें मौजूद, तो इसमें मौजूद है। और मेरे ख्याल में हमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम ही कश्मीर हैं। अब मैं डॉक्टर राजीव सर आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम इंडिया और पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन इन अ डीप हार्ट समवेयर मुझे भी कहीं लगता है कि हम भी गलत हैं। लाइक द वे हम लोगों को अपना जो केस लड़ना चाहिए था या हम लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद हमारे जो बिकॉज हम इंडियन साइड पे रहते हैं, तो हमारा रिलीजन का एक बड़ा चक्कर उसमें पड़ गया। उसको जो है इंडिया ने की जो गवर्नमेंट सिस्टम, जगमोहन जी ने बड़ा उसका फायदा उठाया, जो कश्मीरी पंडित का और उसका वो इशू उठाकर जो है, जो आज तक ब्लेम किया जाता है कश्मीरी मुसलमानों को, उसके लिए वो सब खड़ा करके, आपको नहीं लगता कि किसी ने कोशिश भी नहीं की इस डिस्प्यूट को खत्म करने की? और उससे पहले 36 सिंहपुरा का भी हुआ था, वो भी बाद में फेक निकला। तो सर आप नहीं समझते कि किसी ने कोशिश भी नहीं की दोनों तरफ से एक दूसरे की कम्युनिटी को करीब लाने के लिए, या इस नरेटिव को जो है चैलेंज करने की कि भाई तमाम कश्मीरी जो है वो बुरे नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम जो है ये क्रिएट किया गया है जस्ट टू डिवाइड अस? तो आपको नहीं लगता कि हम भी कमजोर हैं, हमने भी मौका दिया
जो है इंडिया को, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, ये इससे पहले जो सरकारें रही हैं, उनको वहां पर जो है एक रिलीजियसली लोगों को डिवाइड करने का जो वो हमने दिया है मौका, वो हमने खुद प्रोवाइड किया है। नहीं, ये जो आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत लेट है। उससे पहले इतना कुछ हो चुका था। अब जैसे एक जो वहाँ पे जो वीकनेस जो रही है, जैसे इंडिया ने स्टार्टिंग फ्रॉम 1953 जब शेख अब्दुल्ला को डिसमिस किया और अरेस्ट किया, सो देयर वाज अ पर्सन टू फिल इन हिज प्लेस। तो इंडिया के साथ वो ज्वाइन करके, तो उसके बाद सादिक साहब आए, उसके बाद मीर कासिम साहब आए, फिर दोबारा शेख अब्दुल्ला। तो लेकिन ये इस पूरे एवोल्यूशन के दौरान जो ग्राउंड रियलिटी है कि पॉपुलेशन नेवर वेवर्ड, पॉपुलेशन नेवर एक्सेप्टेड बीइंग पार्ट ऑफ इंडिया। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन रहे, कश्मीरी पॉपुलेशन कभी भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इंडियन डिनोमिनेशन को। लेकिन उसके बाद जो जगमोहन का इंट्रोडक्शन हुआ, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। he is the person who infused this communalism in Kashmir. उसने आके जो वो सिलेक्टिव उसने भड़काया वो कम्युनलिज्म उसने, और जो माइग्रेशन हुआ, दैट वाज ए वेरी सैड एपिसोड। लेकिन उस माइग्रेशन में आप अगर उसकी बारीकी से उस माइग्रेशन को देखें तो उसमें भी जगमोहन का बहुत बड़ा पार्ट रहा, क्योंकि जगमोहन वाज गवर्नर एट दैट टाइम। आप जो 1989 ऑटम में जो अपराइजिंग हुई, उसके बाद स्टेट जो था, the state which was supposed to provide protection, that collapsed. Then Jagmohan became governor. He never tried to discourage anybody from migrating. जो श्रीनगर टू जम्मू जो हाईवे था, वहां पे जो बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो हिंदूज माइग्रेट करके जा रहे थे, उनको वो कहते थे आप अभी तक क्यों नहीं माइग्रेट किए। अच्छा, उनको सो व्हाट वाज, और एकदम से आपने वो जम्मू में खोल दिया कि आप जो भी माइग्रेट रहा उसको पैसा देना शुरू कर दिया होगा। सो दे नेवर डिस्करेज्ड माइग्रेशन। उन्होंने ये कभी नहीं कहा ठीक है हम आपको वहां पे प्रोटेक्शन देते हैं कश्मीर में, दैट वाज नेवर सेड। सो उनके प्लान्स कुछ और थे। The plan was that once they leave, then we can tackle Kashmir. क्योंकि अगर कोई हिंदू मारा गया तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो जगमोहन का जो था, जगमोहन has been a very divisive figure in the history of Kashmir, और उनका जो रोल है वो तो उस लेकिन जगमोहन जो पहली दफा गवर्नर बन के आए, that was in 1984, और उन्होंने आते ही क्या किया, फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी विद ए ह्यूज मेजॉरिटी, उसको डिसमिस किया। सो दैट वाज हिज फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। सो उस टाइम से, उस पॉइंट से कश्मीर नेवर रिकवर्ड एंड इट वाज ऑल इट स्लाइडेड टुवर्ड्स दिस कियास। और जो चेंज हुआ इनटू 1987 के इलेक्शंस में जो पहला बैच था जिन्होंने those who were forced to take up guns against Indian state, those were the people who were participating in elections in 1987. जब वो 1987 के इलेक्शंस का उन्होंने रिजल्ट चेंज कर दिया, so then they had no other option. तो ये कश्मीर की हिस्ट्री, ये जो इंडिया के जो मिस स्टेप्स हैं, दे गो बैक टू 1947। तो ये इसमें ये स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं कर सकते कि हम 1989 में हुआ वो माइग्रेशन हुआ, बट माइग्रेशन देयर वाज
cause and migration was effect of that cause. तो Okay. उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट के बगैर आप नहीं देख सकते और उसमें किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सही। नीरज जी, जब भी मैंने ये मेरा लास्ट क्वेश्चन भी है क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ओवर हो चुका है, हमेशा जब भी मैंने टीवी चैनल्स देखे हैं या जब भी मैं कभी सोशल मीडिया पे बात करती हूँ या अपना पक्ष रखती हूँ, वहां पे हमें हमेशा कहा जाता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि वो लश्कर भी तुम्हारा है, दस्तूर भी तुम्हारा, और पता नहीं तुम हक रखते हो, पता नहीं तलवार भी तुम्हारी है। तो सारा सेटअप आपके हाथ में है, गवर्नमेंट आपके हाथ में है। वहां पे कोई इतना खास लोगों के पास कोई इतना वेपन भी है। ये जो मुजाहिद भी जो हमारे शहीद होते हैं, इनके पास भी एक 47 होती है और कुछ बुलेट्स होते हैं। इससे ज्यादा कभी मैंने देखा नहीं है किसी के पास कोई बहुत बड़ा कोई खजाना निकला हो, कोई इतनी बड़ी कुछ चीजें निकली हो। लॉ आपके हाथ में था, सारी चीजें आपके हाथ में थी। आप क्यों कश्मीरियों मुसलमानों को ब्लेम करते हैं? आप क्यों नहीं उनको सजा देते? बेटा कराठे को आपकी इंडियन कोर्ट ने ही छोड़ा, उसको जो है वहां पे बुलाया गया और वो वहां से बाइज्जत बरी हुआ। और आज जब आर्टिकल 370 को रिवोक करना था, उस टाइम उसको दोबारा उठा के जेल में भेजा जाता है, ठीक है। What kind of joke is this with people of Kashmir? ठीक है, आप खुद जस्टिस नहीं करते हो, ब्लेम कश्मीरियों के ऊपर डालते हो। Don't you think it's a pre-planned, वो जो एक पूरी एक गेम है वहां पे रिलीजियस हेट क्रिएट करने की, लोगों को जो है भड़काने की, लोगों के दिलों में नफरत डालने की, और पूरी दुनिया को ये बावर करवाने की कि हिंदू मुस्लिम की वजह से जो है ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा और मुसलमान जो है हिंदुओं को नापसंद करते हैं, जबकि ऑन द ग्राउंड अगर आप देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, बिल्कुल रिफत, बिल्कुल ठीक कहा। अभी जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे और राजीव जी जो कह रहे थे, ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि जो कश्मीर जो अलग हुआ, स्पेशल स्टेटस बना, अलग उसको पाकिस्तान में शामिल होना था, इंडिया में होना था, रिलीजन बेसिस पे नहीं, रिलीजन बेसिस पे नहीं होना था। रिलीजन बेसिस कब आया? जब राजीव जी कह रहे हैं कम्युनलिज्म जब आया 1947 में, कोई क्राइटेरिया नहीं था कि ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है तो इसलिए ये पाकिस्तान के साथ जाएगा, या हिंदू मेजोरिटी स्टेट है तो ये इंडिया के साथ जाएगा। वहां पर राजाओं को छूट दी गई थी। आपको उनको लगा, राजा साहब को लगा कि आप हमें इंडिया में जाना है, तो इंडिया में आने के लिए तैयार हो गए। उसमें इंडिया तो कभी रिलीजन में कोई विश्वास नहीं करता है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री है इंडिया, सेक्युलर कंट्री है इंडिया, उसको मानता है। उसको पाकिस्तान जरूर मानता है कि वो मुस्लिम स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है, वो मानता रहे, उसमें हमें भी कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है उससे, जिसको जो मानना है वो मानता रहे। लेकिन इंडिया में जो है, जो कश्मीर जो है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, लद्दाखी भी है, तिब्बती भी है, बौद्ध धर्म मानने वाले भी हैं, सब लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हम लोग उसको उसी तरह से देखते हैं। हम लोग मुस्लिम की तरह से नहीं देखते हैं कश्मीर को, किसी भी तरह से कश्मीरियत की तरह से देखते हैं। कश्मीरियत जरूर हम लोग मानते थे कि कश्मीर के जो लोग हैं उनकी कश्मीरियत होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग थी। हमें लगता था कि जो इस्लामिक कल्चर है उससे थोड़ा सा अलग हमें लगता था कि वो है उसको। लेकिन अब धीरे धीरे करके जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि उसका इस्लामाइजेशन किया जाए, कश्मीर का हो रहा है धीरे धीरे करके। हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से इस्लामाइजेशन हो रहा है, 80 के दशक से होना शुरू हो गया था वो, और वो 1000 कट्स की जो थ्योरी थी जनरल जियाउल हक की, वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है हम लोगों को उसमें। नीरज जी, जैसे इंडिया में गवर्नमाइजेशन हो रही है, वैसे कश्मीर में इंडिया इस्लामाइजेशन हो रही है। जब आप वहां पे अपना खुद का ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आप जो है एक स्टेट के पीछे, जो एक छोटी स्टेट है, 1 करोड़ टोटल उसकी आबादी है, एक स्पेसिफिक एरिया, जम्मू में आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप कश्मीर के ऊपर जो है बड़ा वो इस्लामाइजेशन को बड़ा फोकस कर रहे हैं। फिर आप जो है वहां पे गवर्नमाइजेशन को आज तक आप नहीं रोक सके, तो आप इस्लामाइजेशन को कैसे रोक सकते हैं? वो तो उनका बेसिक फेथ है उनका। अगर आप कहते हैं कि वी आर अ सेक्युलर नेशन, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो फिर देन यू हैव टू गिव देम दैट स्पेस, यू हैव टू गिव देम देयर रिलीजियस फ्रीडम। आप अगर वही पाबंदियां एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के ऊपर लेकर आएंगे,
जो आपने गांव जो है वहां पे बैन लगाया है कि आप गांव का गोश्त नहीं खा सकते हैं। आई रिस्पेक्ट वो जो आपका जो सेंटिमेंट है, आपका रिलीजियस फेथ है, मुझे उसके साथ कोई वो नहीं है। मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं समझती हूँ कि अगर कहीं पे किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो वो नहीं होने चाहिए। किसी मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में अगर कोई मुसलमान थोड़ी तादाद में, तो उनको कवर करना चाहिए। कोई ऐसी डोंट यू थिंक दैट यू शुड रिस्पेक्ट पीपल ऑफ कश्मीर because that's the only Muslim majority state in India right now? आप कैसे फिर इसको इस्लामाइजेशन, why don't you give us the space? अगर एक हिंदू को राइट है अपना रिलीजन को फॉलो करने का, अपने रिलीजियस जो उसके वर्चुअल्स हैं उनको फॉलो करने का, then why don't a person in his own land, जो कि बिल्कुल जो अभी डिस्प्यूटेड है, जिसका फैसला वॉर हो, यूनाइटेड नेशन करे, लोग करे, कैसे भी हो, जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप इसको माने ना माने, आप इसको अपना कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी हमें अपना बनाने की कोशिश नहीं की। नहीं, सब अपना है, कश्मीर की सब लोग हमारे ही है। Keep gun on head, you cannot say that we are our own people. नहीं, ऐसा नहीं है, रिलीजियस फ्रीडम सबको है वहां पे। जो आर्टिकल 370 जब हटाया गया था उस वक्त, इस वक्त हो सकता है गवर्नमेंट को, और थी भी इस वक्त की, हो सकता है कि वहां पर कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आर्टिकल 370 की आदत पड़ गई थी कश्मीरी लोगों को। उनको लगता था कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया गया, अगर हटाया जैसा गया तो उनको ऐसा उम्मीद थी कि हो सकता है कि वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, खराब हो सकती है, इसीलिए लॉकडाउन किया गया था। लेकिन अब तो वहां पे जाते हैं, सब लोग जाते हैं, फ्रीडम है सबको। और अब धीरे धीरे करके अब अब्दुल्ला साहब भी छुट गए हैं आपको, जो पिछले काफी समय से नजरबंद थे। हालांकि वो इतना बड़ा नजरबंद नहीं थे, मीडिया से बात करते थे, सब कुछ करते थे, तो वो भी अब बाहर निकल कर आ गए। आपने देखा होगा कल परसों इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, बहुचर्चित, कि हमें तो चीन का, अब वो पाकिस्तान को भूल गए हैं सब। अब उनको लगने लगा कि पाकिस्तान उनकी मदद नहीं कर पाएगा कश्मीर की, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चीन हमारे ऊपर राज कर ले आके, चाइना हम पर रूल कर ले, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान नहीं कर पाएगा इंडिया से इंडिया उनकी बस की बात नहीं है। जो टेररिज्म फैला रहे थे वो फैला पाएंगे उसको। मैं यहाँ पे पॉलिटिशियन का भी कभी कोई मजहब या दीन या ईमान हुआ है? उसको बस लगता है कि जिस तरफ लोगों का वो जा रहा है, जो स्पोर्ट जा रहा है, तो उसी टाइम जो ना वो उसी तरफ को वो करता है, ताकि जो ना मैं अगर इलेक्शन नहीं, मेरा ये माने कि उनको लगने लगा हुआ कि पाकिस्तान उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, या कर पाएगा, पिछले 70 साल से नहीं कर पाया है, उनको आजाद या करना या पाकिस्तान में शामिल करना है। तो अब उन्हें लगा कि चाइना उनको कर सकता है, उनको अब चाइना को मदद करनी चाहिए। तो चाइना का उन्होंने देखा कि चाइना की तरफ चले, तो उन्होंने चाइना को बुला लिया कि चाइना आ जाए हमारे ऊपर रूल करने। नीरज जी, मुझे किसी इंडियन के बारे में शक हो सकता है कि ये इंडियन है या नहीं, ये इंडिया के लिए मोहब्बत रखता है या नहीं रखता, लेकिन आई कैन मैं हल्फ उठा के कह सकती हूँ, ओथ उठ लेती हूँ कि जो फारूक अब्दुल्ला साहब है, ही इज टोटली प्रो इंडियन। ठीक है, वो एक इंडियन से भी बड़ा इंडियन है। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, 1984 में ही वाज इलीगली डिसमिस्ड एज ए चीफ मिनिस्टर बाय जगमोहन। तो और उसके बाद इवन आफ्टर डिसमिसल ही वाज क्राइंग फ्रॉम रूफटॉप्स, आई एम एन इंडियन। आप ये खुद समझिए, उनको आपकी गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया एट द एज ऑफ 80, ही वाज अरेस्टेड। what was the justification for his arrest, for example? They don't have any justification. कोई justification सर, यही justification है, वो कह रहे हैं कि चाइना आके रूल कर ले। इसी बात के लिए उनको कहा गया था, उनको बंद किया गया था कि थोड़ा कम बोले वो। नहीं तो वहां पर वायलेंस हो सकती थी अगर वो इस तरह की बात करते थे। लेकिन हमने देखा कि आर्टिकल 370 हटने के बावजूद भी बहुत शांति रही। इक्का दुक्का कहीं पर कोई स्टोन पेल्टिंग या कोई एनकाउंटर्स तो वहां होते ही हैं। हम लोग देखते हैं कि टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो वो होते ही है वहां पर, लेकिन वो भी बहुत कम हम लोग देख रहे हैं। स्टोन पेल्टिंग बिल्कुल लगभग बंद हो गई है, जो एनकाउंटर्स के बाद इतनी ज्यादा होती थी। मैं अब देखा कि बहुत कम इंसिडेंट सामने आ रही हैं स्टोन पेल्टिंग की भी। लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं अभी गया था साउथ कश्मीर में, जहां मैंने देखा आराम से अपने खेतों में काम कर रहे हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, दुकान खुली हुई है, टाइम से खुलती है, जाते हैं अपना सब काम करते हैं। वो अभी कोरोना से डरे हुए हैं वो। अच्छा ना, अभी आप सब दूसरी बात, लास्ट 3 मिनट से हमारे पास बहुत ही अच्छी हमारी डिस्कशन रही है।
मेरा मकसद, नीरज जी, आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, आप अपने कंट्री को डिफेंड कर बिल्कुल, रहे हैं। मैं भी आप लोगों की रेस्पेक्ट करता हूँ व्यूज की, जो भी आप बोल रहे हैं। अपने जो है अपने वतन को, अपनी सरजमीन को, अपने लोगों को जो है उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। राजीव जी वो अपने लिए बात कर रहे हैं। आई रिस्पेक्ट ब्रिगेडियर साहब, वो अपने वतन को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। यू नो, वी ऑल नीड टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स व्यूज, और हमें एक दूसरे को सुनना चाहिए, और हम जब सुनेंगे तो तभी हम किसी नतीजे में पहुंच सकते हैं। मैं आप लोगों को एक लास्ट एक मिनट देती हूँ। एक ही सवाल है कि व्हाट सॉल्यूशन डू यू सी कि जिससे पीस लाया जा सकता है और इस डिस्प्यूट को हमेशा के लिए रिजॉल्व किया जा सकता है। आप 2 करोड़ इंसानी जिंदगियों को निगलेक्ट नहीं कर सकते, उनको आप छोड़ नहीं सकते, आपको उनको सुनना है, आपने उनको राइट देना है। वो 2 करोड़ लाइव्स जो हैं वो मैटर करती हैं। What India, Pakistan and China should do to bring peace in this region? आप लोगों में से जो पहले, ब्रिगेडियर साहब से शुरू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके पास क्या सोल्यूशन है? फिर मैं राजीव सर के पास आऊंगी और लास्ट में नीरज जी में कमेंट सुनूंगी। एक मिनट के मेरे ख्याल में इसका सोल्यूशन ये है कि इंडियन पीपल शुड फोर्स देयर गवर्नमेंट फर्स्ट कि वो मुसलमान यहाँ से गायब नहीं हो सकते, and they need to revisit their concept of Hindutva. And second is that to resolve all issues in this whole region, the solution of Kashmir issue is a must, and that is the solution is that it has to form part of Pakistan. There is nothing less than this that Pakistan will settle for, or the Kashmiri people will settle for, whether it is through employing violence or peacefully. The choice is yours. सर, राजीव जी, आप क्या समझते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन निकल सकता है? क्या पॉसिबल सोल्यूशन है और क्या होना चाहिए? नहीं, इसमें सोल्यूशन तो देखिए, सोल्यूशन तो यही है कि unless the solution is according to the wishes of the people of Kashmir, so and justice, and और जो भी उनके साथ बेइंसाफी हुई है आज तक, so that has to be compensated. So that has to be in accordance with the wishes of people of Kashmir, not anybody else. Exactly. Not Indian nationalism or anything. And do you see any possibility कि ये तीनों ममालिक जो हैं किसी like प्रेसिडेंट शी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा तो मैं इसको वो करूंगी कि उन्होंने जब चेन्नई कॉन्फ्रेंस में 2019 में चेन्नई कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो उन्होंने जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनसे कहा था कि आप जो है आओ हम तीनों मुल्क जो बैठते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और हम बैठ के जो है इसको रिजॉल्व करते हैं और इसका कोई भाईचारे से आपस में बात करते हैं, जिसको मोदी जी ने निगलेक्ट कर दिया। तो डू यू थिंक कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी या ऐसा कोई दोबारा से कोई ऐसी चीज सामने आ सकती है और इससे कोई सोल्यूशन निकल सकता है? देखिए, मैं इस मामले में आई एम सिनिकल, एनीथिंग हैपनिंग अंडर मोदी गवर्नमेंट। You have no hopes? अंडर मोदी गवर्नमेंट एब्सोल्युटली नो। अब जब मोदी गवर्नमेंट में जो अब ये देखिए जो बिल, मतलब इस चीज को आप इसको अंदर नजरअंदाज नहीं किए। आर्टिकल 370 is not abrogated, it has been inoperated because they cannot abrogate. Parliament does not have power to abrogate. Yeah. And that bill was piloted by a person called Amit Shah. And now you see the antecedents of Amit Shah. तो आप देखिए कोई उम्मीद है? I don't think so. I don't see as well. नीरज जी, लास्ट कमेंट आपसे बिल्कुल वही सवाल है। आप समझते हैं कि क्या अब लद्दाख का जो हिस्सा हमारे हाथ से जा चुका है वो वापस आ सकता है? अक्सर चीन हम ऑलरेडी खो चुके थे, तीसरा न्यूक्लियर पावर इन्वॉल्व हो चुका है। इंडिया जो है वो अब कह रहा है कि हमने जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से जो है हम मसला कश्मीर को बाहर लाना चाहते हैं। अगर वो बाहर लेकर आएगा तो वो कैसे जो है क्लेम करता है कि मैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है या जो चाइना के पास हिस्सा है, मैं उसको वापस लूंगा। क्या इंडिया इस रीजन में इतनी पावर रखता है कि वो 3-4 फ्रंट से जो है वो लड़ाई लड़े? अकॉर्डिंग टू यू कि ये 1962 का इंडिया नहीं है, लेकिन अभी पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, यू कैन नॉट निग्लेक्ट, ठीक है?
बारूद की कोई जुबान नहीं रहती। सर, ओवर टू यू। देखिए रिफत, अगर हम लोग बात करें कि क्या सोल्यूशन क्या आगे के लिए क्या हो सकता है, तो पहली बात तो ये कि अब अक्सर चीन तो चला गया था, लेकिन अब चीन अब और ज्यादा कोई एरिया, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि वो कब्जा नहीं कर सकता लद्दाख का। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर की बात, आर्टिकल 370 हटाना अच्छा कदम था भारत सरकार का। पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी होगी जब भारत को ये लगेगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, आतंकवाद फैलाना कश्मीर में बंद कर दिया जाएगा, उस दिन भारत फिर से बातचीत की टेबल पर आ जाएगा और सब बातचीत करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो बातचीत के जरिए ही सब कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। गन्स फाइट्स जो वॉर है उसके बाद भी बातचीत ही करनी पड़ती है आपको। तो अगर पाकिस्तान बंद कर देता है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, तो भारत जो है तैयार हो जाएगा बातचीत के लिए, जैसे पहले भी हुआ था, नवाज शरीफ साहब के साथ तैयार हो गए थे बातचीत करने के लिए, ऐसे ही और पहले भी हो चुका है। हमने देखा था कि परवेज मुशर्रफ साहब के साथ भी वाजपेयी साहब मिलने के लिए गए थे, उसके बाद क्या हुआ, करगिल हो गया, करगिल में आके कब्जा कर लिया। तो जब तक ये हमें लगेगा नहीं, भारत को लगेगा नहीं कि पाकिस्तान जो है बहुत सीरियस है कश्मीर सॉल्यूशन के लिए, टेररिज्म खत्म करने के लिए, तब तक बातचीत नहीं होगी। अगर वो कर देता है लगेगा भारत को, तो बातचीत के टेबल पर बैठेंगे और सोल्यूशन। थैंक यू। ऐसे तो पाकिस्तान को भी लगता है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है इंडिया जो है वो टेररिज्म करवा रहा है, जिसमें वो कुलभूषण को जो है उन्होंने वो किया हुआ है, कैप्चर किया हुआ है, और इसी तरह वो पीडीएम को जो है वो कहते हैं कि इंडिया सपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि ये ना खत्म होने वाली वॉर है और इसको जो है कहीं ना कहीं टेबल पर बैठ के सुलझाने की जरूरत है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जो मेरे मौजूद मेहमान ग्रामी हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारा 1 घंटे का शो था, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बातें की ज्यादा थी और टॉपिक इतना बड़ा था, तो हम उसको कवर नहीं कर पाए 1 घंटे में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। नीरज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सर राजीव कुमार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड हैविंग पेशेंस, और सुनने के लिए, देखने के लिए, और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ इतनी देर बने रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नए प्रोग्राम के साथ, आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।